Good morning, students. As we have discussed in previous classes, what is JDBC, how we can get connected with the database, how we can load the drivers, then how we can get connected with the database, then how we can perform various operations with the database. Basically, we are required to perform 4 operations with the database. First one is performing insert operation to insert new data in the database, then performing update operation to modify existing data available in the database, and delete operation to delete existing data from the database, and performing select operation to retrieve the data from the database. In previous classes, we have discussed all these 4 operations on the database. Clear, students? Yes, sir. इंसर्जन का डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम बना चुके हैं, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराने का न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने बनाया था, इंसर्जन ऑपरेशन का प्रोग्राम बना चुके हैं, मॉडिफाई स्टूडेंट डिटेल्स का जो हमने प्रोग्राम बनाया था, डेटाबेस को अपडेट करने का प्रोग्राम बना चुके हैं, एंड डिलीट का जो हमने प्रोग्राम बनाया था, डेटाबेस से डेटा डिलीट करने का प्रोग्राम बना चुके हैं. जो हमने अपडेट और डिलीट वाला प्रोग्राम बनाया था, इन दैट प्रोग्राम वी आर ऑल्सो रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. तो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने का प्रोग्राम बना चुके हैं. क्लियर, स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, But sir. so far we are retrieving data from the database. So far from the database, at a time we are retrieving only single record. One data. Clear, students? Yes, sir. But sometimes we may also require to retrieve multiple records from the database and we would like to display them. ऐसी भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हमें अपनी टेबल से बहुत सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव कराने होंगे और सभी रिकॉर्ड्स का डेटा एक साथ डिस्प्ले कराना होगा जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे. So far you are designing such screens using which user can insert the new data, user can update the existing data, user can delete the data. But when we will be developing reports, synopsis में discuss किया था students हमने report के बारे में. Yes, yes, sir. So whenever we will be designing the reports, we will be required to retrieve multiple records from the database and we will be required to display all those records at the same time. Clear, students? Yes, sir. How we can display multiple records, how we can display the details of multiple students at the same time. Which component will be used to display details of multiple students at the same time? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी तक हम सिंगल स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करा रहे हैं. सिंगल रिकॉर्ड रिट्रीव करा के उसे डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फील्ड्स, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्सेस. जैसा कि आपने देखा था अपडेट और डिलीट का जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें हम स्टूडेंट नेम डालते हैं, सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो उन स्टूडेंट्स की ऑल डिटेल्स हमें डिस्प्ले हो जाती हैं. कहां पर डिस्प्ले हो जाती हैं? नेम टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होता है, मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होता है, एड्रेस टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले होता है, जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन्स यूज किए हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने कॉम्बो बॉक्स यूज किए हैं. तो सो फार टू डिस्प्ले single student details we are working with text field, we are working with text area, we are working with radio buttons, we are working with check boxes. But if we want to display the details of multiple students at the same time तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? List box. List box. List box. But in one list box we can display the one detail only. फॉर एग्जाम्पल हमें स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले कराने हैं तो एक लिस्ट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे, लेकिन हमें केवल नेम डिस्प्ले नहीं कराने हैं, हमें उस स्टूडेंट की मल्टीपल डिटेल डिस्प्ले करानी है. फॉर एग्जाम्पल हमें स्टूडेंट का नेम भी डिस्प्ले कराना है, मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले कराना है, हमें स्टूडेंट के जेंडर भी डिस्प्ले कराना है, डेट ऑफ टेबल. एग्जैक्टली, वी विल बी वर्किंग विद टेबल. Table. जानते हैं स्टूडेंट्स टेबल? अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो जब भी आप जावा में कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिस प्रोग्राम में आपको मल्टीपल डिटेल्स डिस्प्ले करानी है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं, यू विल बी वर्किंग विद टेबल.
and to work with table, swing component provide the concept of JTable. AWT does not provide any component that can be used to display data in a tabular format, but swing provides a component by the name JTable that can be used to display multiple data in a tabular format. Clear, students? Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, today we will be working with JTable component. आज हम JTable component पर ही वर्क करेंगे. सबसे पहले हम JTable component बनाना सीखेंगे. उसके बाद JTable component की हेल्प से हम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले कराना सीखेंगे. फिर JTable के डेटा को फॉर्मेट करना सीखेंगे. फिर हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करा के डेटाबेस से डेटा JTable में रिट्रीव कराएंगे. क्लियर, स्टूडेंट्स? Yes, sir. सबसे पहले we are developing a simple program using JTable to display data in a tabular format. That's why to develop a program, I am starting Notepad. Visible है students? No, sir. Notepad is visible? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट कराते हैं. तो पैकेज इंपोर्ट करा लेते हैं javax.swing.stray. अभी केवल यही पैकेज इंपोर्ट कराते हैं. As we all know, Java is an object-oriented programming language. Therefore, to perform any task, we will be creating a class. तो हमने क्लास बनाई, सपोज क्लास को हमने नेम दे दिया टेबल एग्जाम्पल. इसको एक्सटेंड करा लें. एक्सटेंड्स JFrame. अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका पर्पस समझ लीजिएगा. व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. हियर वी आर डिस्प्लेइंग अ स्क्रीन which will be displaying student details in a tabular format. एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें एक स्क्रीन बनानी है, एक विंडो बनानी है. उस विंडो में केवल एक ही कंपोनेंट होगा, टेबल. उस कंपोनेंट में हम कुछ स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले कराएंगे. तो हमें एक फ्रेम चाहिए और एक हमें JTable कंपोनेंट चाहिए. हमने अपनी क्लास को JFrame से इनहाइट करा लिया तो फ्रेम हमें ऑटोमेटिकली मिल गया. अब दूसरा हमें टेबल चाहिए. टेबल बनाने के लिए हम JTable क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. तो आपने देखा जब whenever we are defining any class, a class comprises of only two things, data members and methods. So first of all, we are declaring data members. In this class, we are required to work only with two data members. One is frame, another is table. Frame के लिए हमने अपनी क्लास को JFrame से इनहाइट करा लिया. टेबल के लिए हमने ऑब्जेक्ट बना लिया JTable. और किसी ऑब्जेक्ट की अभी हमें फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है. तो कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करें. कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करने के लिए मेथड बनाएं. मेथड में हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. हमने कंस्ट्रक्टर बनाया. यहाँ पे हम सबसे पहले अपने फ्रेम को डिजाइन कर लें. फ्रेम को डिजाइन करने के लिए हमें फ्रेम का टाइटल देना है. हमने फ्रेम का टाइटल दे दिया सेट टाइटल, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम. देन हमें फ्रेम का साइज सेट करना है. हमने कहा सेट साइज. जो भी आप फ्रेम को साइज सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहा 400, 300. उसके बाद हमें फ्रेम का क्लोज बटन वर्क कराना है. फ्रेम के क्लोज बटन को वर्क कराने के लिए हम लिखते हैं सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन ब्रैकेट में कैप्स में एग्जिट ऑन क्लोज. क्लियर, स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now we will design a table. To design a table, we have created an object of JTable class. JTable Table. स्पेस ऑब्जेक्ट नेम. सपोज हमने ऑब्जेक्ट नेम दे दिया JT. Now we will instantiate this object. To create a table, we will create an object of JTable class using this syntax: JTable equal to new JTable. और ब्रैकेट में हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं. Because a table comprises of two things. A table is a collection of rows and columns. Column. Clear? Rows are also known as records and data. Columns are also known as fields and attributes or headings. Clear, students? Yes, sir. Yes, तो यहाँ पर अब हमें दो चीजें बतानी है. एक तो डेटा, जो डेटा हमें टेबल में डालना है. दूसरा टेबल की हेडिंग्स, टेबल में हेडिंग क्या क्या लेनी है. अभी तक हमने वो
एक्चुअल में तो वो डेटा हम डेटाबेस से रिट्रीव कराएंगे, लेकिन अभी हम डेटाबेस से रिट्रीव नहीं करा रहे हैं, पहले हम टेबल्स बनाना सीख रहे हैं, इसलिए वो डेटा हम अपने पास से ले लेते हैं और हेडिंग भी हम अपने पास से ले लेते हैं। तो डेटा और हेडिंग अपने पास से लेने के लिए वी विल डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, one for headings and another for data. For heading, suppose we declare a variable string heads. Here we will define all the headings. Suppose we are displaying student details and we are displaying what details with respect to students. We are displaying student name, we are displaying students mobile number, address and gender. तो हमने फर्स्ट हेडिंग ले ली नेम, सेकंड हेडिंग ले लें मोबाइल, थर्ड हेडिंग ले लें जेंडर और फोर्थ हेडिंग ले लेते हैं एड्रेस। जितने भी हेडिंग्स आपको लेनी है आप उतनी हेडिंग ले सकते हैं। इन माय एग्जांपल आई एम टेकिंग ओनली 4 हेडिंग्स, नेम, मोबाइल, जेंडर एंड एड्रेस, और मैंने उसको एरे नेम दिया है हेड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ये समझ गए हैं ये हमने एरे क्यों लिया है? अगर हम एरे नहीं लेते, खाली स्ट्रिंग लेते, तो हम उसमें केवल एक स्ट्रिंग स्टोर करा सकते थे, बट वी हैव मल्टीपल स्ट्रिंग्स, इसलिए हमने उसको एरे लिया। क्लियर? अब हमें लेना है डेटा। डेटा के लिए हम लेंगे 2 डायमेंशनल, क्योंकि उसमें मल्टीपल रोज का डेटा होगा, उसके लिए 2 डायमेंशनल एरे लेते हैं। 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने के लिए फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस, देन अब जितनी हमें रो का डेटा लेना है उतने ही कर्ली ब्रेसेस में हम रो लेंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल है, मान लीजिए जिनका नाम है अमित, कॉमा मोबाइल नंबर, कॉमा जेंडर, कॉमा एड्रेस। These are the first student detail. अब हमें सेकंड स्टूडेंट डिटेल डालनी है, सेकंड स्टूडेंट डिटेल, थर्ड स्टूडेंट डिटेल, फोर्थ स्टूडेंट डिटेल, फिफ्थ स्टूडेंट डिटेल्स। कर्ली ब्रेसेस बाउंड रोहित, लास्ट में क्लोजिंग ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन और लास्ट कर्ली, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। बताइए स्टूडेंट्स, ये दोनों वेरिएबल्स समझ आ गए दोनों? यस सर। हेड इज फॉर हेडिंग्स एंड सर डेटा इज डेटा के फॉर साथ हेडिंग। 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिया, 2 डायमेंशन है ना? डेटा के साथ हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लिए हैं, अगर हम सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लेते जैसे हमने हेड में लिया है तो उसमें हम केवल एक ही रो में डेटा डाल पाते। हमें मल्टीपल रोज में डेटा डालना है तो हमारे, देखिए ऐसे समझिएगा, अगर ये हमारा सिंगल सिंपल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होता, एरे ना होता, तो हम इसमें कितनी स्ट्रिंग डाल पाते? सिंगल सिंगल स्ट्रिंग। हमें इसमें एक से ज्यादा स्ट्रिंग डालनी है तो हमने इसको क्या ले लिया? सिंगल डायमेंशनल एरे। क्लियर? अब इस सिंगल डायमेंशनल एरे में हम कितनी रो में स्ट्रिंग डाल सकते हैं? 1 रो मल्टीपल स्ट्रिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। If we want to store multiple row, multiple string, then we have to declare 2 dimensional array. Clear? यस सर। चलिए अब टेबल बना लें, वापस चलते हैं टेबल बनाने पे। जब हम ये टेबल बनाएंगे तो हम लिखेंगे JT इक्वल टू न्यू जे टेबल। सबसे पहले देते हैं डेटा। डेटा कहां से आ रहा है हमारा? डेटा के लिए हमने वेरिएबल लिया है डेटा। उसके बाद देते हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स के लिए हमने वेरिएबल लिया है हेड्स। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। टेबल बन गई हमारी। क्लियर? यस सर। अब इस टेबल को कहां पे ऐड करा दें? फ्रेम पे, कंटेनर कंटेनर पे ऐड करा दें, फ्रेम पे ऐड करा दें। फ्रेम पे ऐड कराने के लिए हमने कहा ऐड जेटी।
ये टेबल हमारी फ्रेम पे ऐड हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नहीं। यस सर। बताइए Yes, समझ आ sir. गया? सर फ्रेम तो लिया ही नहीं था लेकिन फ्रेम हमने लिया था। इनहेरिट कराया है ना, फ्रेम क्लास से हमने इनहेरिट कराया है एक्सटेंड्स जे फ्रेम। यस सर। कंसेप्ट भूल गए हैं स्विंग का? स्विंग में क्या बताया था, जब क्लास बनाते हैं याद तो है। उसे जे फ्रेम से इनहेरिट करा लेते हैं। जब हम जे फ्रेम से इनहेरिट करा लेंगे तो आर क्लास हैज बिकम अ फ्रेम इटसेल्फ। अब हमारी क्लास ही क्या बन गई है? फ्रेम बन गई है। फ्रेम। अब हम फ्रेम क्लास के सारे मेथड्स डायरेक्टली कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने सेट टाइटल कॉल किया, सेट साइज कॉल किया, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कॉल किया, ऐसे ही ऐड कॉल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। मैं यस बताता हूँ सर। आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कंटेनर से। इन प्रीवियस एग्जांपल वी हैव आल्सो टेकन कंटेनर टू ऐड कंपोनेंट्स ऑन अ फ्रेम। प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने फ्रेम पे कंपोनेंट्स को ऐड कराने के लिए कंटेनर भी लिया था सी नेम से, और हम कंटेनर पे कंपोनेंट्स ऐड करा रहे थे। लेकिन कंपल्सन नहीं है आप फ्रेम पे कंटेनर भी लें, आप विदाउट कंटेनर डायरेक्टली कंपोनेंट्स फ्रेम पर भी ऐड करा सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली कंपोनेंट बिना कंटेनर के फ्रेम पे ऐड करा रहे हैं। अगर आपको Okay. कंफ्यूजन हो रहा है और आप कंटेनर लेना चाहते हैं तो आप कंटेनर भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। नो क्लियर? सर ठीक है। लेके दिखाऊं Yes, sir. कंटेनर? नहीं नहीं सही थी। ओके ओके, चलिए अब हमने जो ये कंपोनेंट ऐड कराया है जे टेबल, लेकिन आप देख रहे हैं हमने इसके लिए सेट बाउंड्स नहीं दिया। यस सर। अगर हम सेट बाउंड नहीं देंगे तो कंटेनर किसके अकॉर्डिंग ऐड होगा? हमने सेट बाउंड पहली बात क्यों नहीं दिया है? हमने सेट बाउंड इसलिए नहीं दिया है, अगर हम सेट बाउंड दे देंगे तो हमारी विंडो का साइज फिक्स हो जाएगा। जब हम सेट बाउंड देते हैं तो हमें विड्थ और हाइट भी देनी पड़ती है, और अगर हम विड्थ और हाइट देंगे तो हमारी जे टेबल का साइज फिक्स हो जाएगा। अब अगर उसमें नंबर ऑफ रोज बढ़ जाती हैं और टेबल का साइज छोटा है तो बाकी रोज हमें दिखाई नहीं देंगी। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है और टेबल की विड्थ कम है तो हमें बाकी कॉलम्स दिखाई नहीं देंगे। तो हम चाहते हैं टेबल का साइज विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के साइज के अकॉर्डिंग टेबल का साइज एडजस्ट हो जाए। कंटेनर मींस फ्रेम, जो हमने फ्रेम लिया है। अगर हम फ्रेम का साइज छोटा करें तो टेबल का साइज छोटा हो जाए, फ्रेम का साइज बड़ा करें तो टेबल का साइज बड़ा हो जाए। इट मींस वी वांट अ टेबल बाय द सेम साइज ऑफ द कंटेनर। हमें टेबल उसी साइज की चाहिए जिस साइज का हमारा फ्रेम है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं? ऐसा करने के लिए हम अपने कंटेनर पे बॉर्डर लेआउट सेट करते हैं और हम कंपोनेंट को सेंटर में ऐड करा देते हैं। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को सेंटर में ऐड कराएंगे तो उस कंपोनेंट का साइज बाय डिफॉल्ट उतना बड़ा बनेगा जितना बड़ा हमारा कंटेनर है। तो ऐड कराने से पहले हम अपने कंटेनर का लेआउट सेट कर दें। सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। इससे क्या होगा? न्यू बॉर्डर लेआउट से बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बनेगा। वो ऑब्जेक्ट हमने सेट लेआउट में सेट कर दिया, यानी कि अब हमारे फ्रेम का लेआउट क्या बन गया? बॉर्डर लेआउट बन गया। बॉर्डर लेयर। अब हम जेटी को ऐड कराएंगे और कोई पोजीशन नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में जाके ऐड होगा। सेंटर में जाके ऐड होगा तो इसका साइज ऑटोमेटिकली फ्रेम के साइज के इक्विवेलेंट बन जाएगा। और फ्रेम का साइज हमने कितना लिया है? 400, 300। तो हमारे टेबल का साइज कितना हो जाएगा? 400, 300। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर? यस यस सर। फ्रेम बन गया, टेबल बन गई, टेबल में डेटा आ गया, और कुछ नहीं कराना है। दैट्स व्हाई शो द फ्रेम, क्लोजिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, क्लोजिंग ऑफ क्लास। नाउ डिफाइन मेन क्लास, टेबल एग्जांपल डेमो, पब्लिक स्टैटिक void main string s table example t equal to new table example open close parenthesis main close class close। बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सेव करा लें, कंट्रोल एस डी कॉलन। हम अपने सारे प्रोग्राम सेव करा रहे हैं। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है? नो सर। अब ठीक है? इधर सही आ रही है। यस सर। नमन, हो सकता है तुम्हारी साइड में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स को सही आ रही है। तो यानी कि मेरी साइड से आवाज सही जा रही है। देयर मे बी अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। ओके सर। ओके,
चलिए ओके सर, ओके ओके ठीक है सर, ठीक। सेव करा लेते हैं बाय द नेम टेबल एग्जाम्पल डेमो डॉट जावा और एल्स क्लिक ऑन सेव। आकृति क्लास अटेंड कर रही हैं? हेलो आकृति। यस सर, यस सर। आपके प्रोजेक्ट में यही प्रॉब्लम थी ना, टेबल आपको बनानी थी? यस सर, हाँ। तो वही टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी सभी को अपने प्रोजेक्ट में टेबल जरूर बनानी होगी। बिना टेबल के किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें डेटाबेस से मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम रिट्रीव करा के एट द सेम टाइम डिस्प्ले कराने होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए Yes, ये हमने sir. सेव कर लिया। अब इसको कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। कंपाइल और रन करने के लिए चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now compile javac table example demo dot java। Java. देखिए एरर दिखा रहा है, बॉर्डर लेआउट में एरर दिखा रहा है। Yes, sir. बता सकते हैं स्टूडेंट्स ये एरर क्यों आ रही है? Package import. पैकेज इंपोर्ट नहीं कराया हमने। कौन सा? AWT, because layout classes are available in AWT package. That's why we have to import java.awt.asterisk। सेव कराएंगे, then again कंपाइल कराते हैं। Has been compiled successfully. Yes, sir. Yes, sir. Now run the program। देख रहे हैं, आउटपुट विंडो शेयर करता हूं मैं आपके साथ। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आउटपुट Yes, sir. हमारा टेबल में आ रहा है। Yes, sir. हमने डिस्प्ले कराया था नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर एंड एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। Sir, heading Yes, नहीं आई sir. लेकिन। हाँ, अभी आप देखें टेबल का फ्रेम का साइज चेंज करें तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपकी टेबल का साइज चेंज हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हमने इसको बॉर्डर लेआउट पे सेंटर में ऐड कराया था। टेबल का साइज कम करते हैं, विंडो का साइज आपका कम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. किसी कॉलम की विड्थ कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो हेडिंग से होती है, लेकिन आप देख रहे हैं हेडिंग तो आ ही नहीं रही है। Yes, sir. तो देखिए, जबकि हमने हेडिंग दी है या नहीं दी है? So, दीदी। दी है, तब भी नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है अगर आपने टेबल बनाई है ओनली विद द हेल्प ऑफ जे टेबल, हेडिंग विल नॉट बी डिस्प्लेड। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये आउटपुट आप देख रहे हैं, जरा दोबारा से देखते हैं आउटपुट। ये आउटपुट आप देखिएगा। अभी हमारे इस टेबल में कितनी रोज हैं? हेलो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस टेबल? 5, 6. ओनली 5 रोज। अगर इस टेबल में 20 रोज होती तो शायद 20 रोज भी डिस्प्ले हो जाती, क्योंकि हमारी फ्रेम का साइज इतना बड़ा है। बट सपोज देयर आर 500 रोज इन दिस टेबल। अगर इस टेबल में 500 रोज होती, इज इट पॉसिबल टू डिस्प्ले ऑल द रोज एट द सेम टाइम? No, sir. No, तो sir. फिर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है इस टेबल में? Scroll bar. स्क्रॉल बार। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हमें स्क्रॉल बार इसमें प्लेस करना होता, तो इसीलिए हेडिंग नहीं आ रही है। अगर आप अपनी टेबल में स्क्रॉल बार ऐड नहीं कराएंगे, देन टेबल हेडिंग्स विल नॉट बी डिस्प्लेड। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, हमने sir. अपनी टेबल में स्क्रॉल बार ऐड नहीं कराया है, इसलिए हमारी टेबल में हेडिंग्स नहीं आ रही हैं। मैं स्क्रॉल बार और ऐड करा देता हूं। जैसे ही आप स्क्रॉल बार ऐड कराएंगे, टेबल में हेडिंग्स आ जाएंगी। स्क्रॉल बार ऐड कराने के लिए कुछ नहीं करना होता, जस्ट सिंपल सा मेथड है। टू वर्क विद स्क्रॉल बार, java.swing package provide the class jscrollpane। Therefore, just create an object of scroll bar, jscrollpane class, jscrollpane object name equal to new jscrollpane। अब
अब देखिए हमें टेबल पे क्या लगाना है, स्क्रॉल बार लगाना है? यस सर। नहीं, उल्टा होता है, हमें स्क्रॉल बार को टेबल में डालना है। क्लियर स्टूडेंट? हम ये नहीं कहेंगे कि हमें टेबल पे स्क्रॉल बार लगाना है, हम ये कहेंगे स्क्रॉल बार में टेबल डालनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ताकि स्क्रॉल बार की हेल्प से उस टेबल को स्क्रॉल करा सकें। एक्चुअली स्क्रॉल बार विल ऑपरेट द टेबल, टेबल विल नॉट ऑपरेट द स्क्रॉल बार। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। तो इसलिए हम कहेंगे कि स्क्रॉल बार में टेबल डालनी है इंस्टेड ऑफ टेबल में स्क्रॉल बार लगाना है। तो जब स्क्रॉल बार बनाएंगे तब वहां पर टेबल का नाम दे देंगे। तो स्क्रॉल बार में क्या ऐड हो गई? टेबल। टेबल। अब ये बताइए, फ्रेम पे स्क्रॉल बार ऐड कराएं या टेबल ऐड कराएं? स्क्रॉल बार। Scroll bar. Scroll bar. Because if we add the scroll bar to the frame, then table will automatically be added because table is already added in the scroll bar. स्क्रॉल बार। Clear students? तो यहाँ पे add की जगह मैं scroll pane दे देता हूँ। Scroll pane का नाम हमने रखा है scroll. Clear students? यस सर। सेव करते हैं, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं, has been compiled successfully, रन कराते हैं। देख रहे हैं हेडिंग्स आ गई हैं? ओके, शेयर करता हूं मैं, आउटपुट शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, देखिएगा। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हेडिंग आ गई है? नेम, मोबाइल, जेंडर और एड्रेस। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन आप सोच रहे होंगे स्क्रॉल बार्स तो आए ही नहीं। वो ज्यादा एंट्रीज पाएंगे। सर जब डेटा बिल्कुल। ज्यादा होगा तब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमारे पास कम डेटा है, इसके लिए स्क्रॉल बार्स नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करता हूं, टेबल का साइज छोटा कर देता हूं ताकि डेटा ज्यादा हो जाए। छोटा कर लीजिए। ये देखिए, जैसे ही आपने टेबल का साइज छोटा किया, आप देख रहे हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गया। आ गया स्टूडेंट? यस सर। यहाँ पे आप स्क्रॉल करा सकते हैं, देखिए, अप एंड डाउन। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर सर। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कैसे है? Horizontal, actually, while we are working with table, horizontal scroll bar is not required because you can change the column width. मैं आपको दिखाता हूं करके। जिस भी कॉलम पे जाएंगे आप उसकी width चेंज कर लेंगे। देखिए, अच्छा मार दो। आपको नेम वाला कॉलम पूरा देखना है, आपने नेम कॉलम की width बढ़ा ली, बाकी की अपने आप कम हो जाएगी। आपको मोबाइल वाला width कॉलम पूरा देखना है, आपने मोबाइल की width बढ़ा ली, बाकी की अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। That's why horizontal scroll bar is not required. Clear students? आप कितना ही कम कर लीजिए इसका साइज, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप कितना ही कम कर लीजिए, horizontal scroll bar की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। Clear students? यस सर। अब आप देख रहे हैं जो टेबल है, टेबल में 5 रोज हैं। यस सर। 5 रोज के बाद वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, मैं आपको एनोटेशन से दिखाता हूं। 5 रोज के बाद ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में टेबल नहीं आ रही है यस सर। क्योंकि टेबल में डेटा नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। हम चाहते हैं टेबल पूरे एरिया में आए, अगर बाकी एरिया में डेटा नहीं है तो टेबल ब्लैंक रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो उसके लिए क्या करेंगे आप देखिए, उसके लिए आपको प्रोग्राम में चलते हैं वापस। यहां पर टेबल कितने एरिया में डिस्प्ले करानी है उसके लिए आप लिखेंगे jt.set fills viewport height, इसको कर देंगे ट्रू। set fills viewport is a built-in method of JTable class, जो ये बताता है कि टेबल आपने जिस एरिया में व्यू कराई है, टेबल उस पूरे एरिया को फिल करे या ना करे। अब हमने टेबल फ्रेम में फिल कराई है, तो पूरे फ्रेम को फिल करके आए या उतने ही एरिया में आए जितने एरिया में डेटा है। हमने कह दिया अब ट्रू, ट्रू का मतलब है पूरे एरिया में आए। अब इसको देखिएगा, कंपाइल करते हैं, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। पहले आउटपुट देख लीजिए, अभी तक जो आ रहा था, ये आउटपुट आ रहा था, टेबल केवल 5 रोज में आ रही थी, उसके नीचे का एरिया ब्लैंक आ रहा था।
ब्लैंक का मतलब है ग्रे कलर का आ रहा है, जबकि आप देख रहे हैं टेबल, हमारी टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है। चप्पल निकाल के मारूंगी, बता रही हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। वापस चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। अब देखिए, अभी शेयर करता हूं मैं आपको। अब देखिए आप टेबल पूरे एरिया में आ रही है, नीचे का एरिया भी व्हाइट आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अगर आप चाहते हैं टेबल आपके पूरे व्यू पोर्ट पे आए तो यू कैन सेट फिल्स व्यू पोर्ट हाइट टू ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अभी आप देख रहे हैं टेबल में जो डेटा लिखा हुआ आ रहा है वो छोटा छोटा आ रहा है, हम चाहते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा आए। क्लियर? यस सर। कैसे करेंगे बताइए फॉन्ट स्टूडेंट्स? साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट लेके सेट फॉन्ट बताया था, सेट फॉन्ट मेथड होता है। तो Yes, यहाँ sir. पर फॉन्ट क्लास का sir. ऑब्जेक्ट बना लें, फॉन्ट f1 इक्वल टू न्यू फॉन्ट, ब्रैकेट में जिस फॉन्ट में आप देना चाहते हैं, हमने कहा वर्डाना फॉन्ट में आए, हम चाहते हैं स्टाइल आए बोल्ड, फॉन्ट डॉट बोल्ड, हम चाहते हैं साइज आए 15। अब इस फॉन्ट को टेबल पे अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करेंगे टेबल पे? टेबल पे अप्लाई करने के लिए आप लिखेंगे jt.setFont ब्रैकेट में F1, सेव करते हैं, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, देन कंपाइल करते हैं, देन रन कराते हैं। देखिएगा आउटपुट आ रहा है, डेटा बड़ा बड़ा। यस सर। Yes, sir. हेडिंग नहीं, हेडिंग्स का चेंज नहीं होगा, केवल किसका चेंज होगा? डेटा का। ठीक है? का। इफ यू वांट टू चेंज हेडिंग्स फॉर्मेट, वो भी मैं सिखाऊंगा आगे, अभी पहले आप डेटा का समझ लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? यस sir. सर। यस सर। अभी आप देख रहे हैं हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है, मुझे ब्लैक Yes, कलर sir. से नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं टेक्स्ट लिखा हुआ है ब्लू कलर से। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। बाय Yes, डिफॉल्ट sir. आप देख रहे हैं जो आपका टेबल का बैकग्राउंड है वो व्हाइट आ रहा है। क्लियर Yes, sir. स्टूडेंट्स? मुझे टेबल का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं टेबल किसी कलर से फिल होके आए, कलरफुल टेबल चाहिए मुझे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस sir. Yes, सर। sir. अच्छा, ये जो टेबल की रोज आ रही हैं, रोज की हाइट आपको छोटी छोटी नहीं लग रही हाँ बड़ी चाहिए बड़ा। है ना? हमें थोड़ी बड़ी बड़ी चाहिए, थोड़ी अट्रैक्टिव लगे टेबल, दूर से दिखाई दे यूजर को क्या डेटा है टेबल में। तो हाउ वी विल फॉर्मेट द टेबल? इट मींस वी वांट टू परफॉर्म फॉर्मेटिंग फॉर अ टेबल। हाउ वी कैन परफॉर्म फॉर्मेटिंग फॉर अ टेबल? तो उसके लिए वापस प्रोग्राम में चलते हैं। अगर आपको टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए मेथड होता है सेट बैकग्राउंड, जो हमने फ्रेम के साथ पढ़ा था। यहाँ पे कलर दे दीजिए, जो भी Yes, कलर sir. आप देना चाहते हैं, मैंने कहा कलर डॉट ब्लू। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये तो हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ, अब जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है, अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए मेथड होता है सेट फोरग्राउंड। फॉरग्राउंड। बैकग्राउंड माने बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड मींस टेक्स्ट कलर। Back. तो मान लीजिए हम दे देते हैं, अभी इसको सेट Yellow. नहीं करते, अभी नहीं सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे टेक्स्ट का कलर? ब्लू। ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक ब्लैक आप देखें ना, टेक्स्ट जो लिखा हुआ आ रहा है वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है? Yes. तो अभी हमने फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया। अब हम रोज की हाइट चेंज करना चाहते हैं, तो रोज की हाइट चेंज करने के लिए मेथड होता है सेट रो हाइट। सपोज हमने कह दिया 30। क्लियर स्टूडेंट्स? सेव करते हैं, यस सर। वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, देन आई विल शो यू द आउटपुट। देख रहे हैं टेबल की हाइट, रोज हाइट चेंज हो गई है, Yes, sir. यस सर। टेबल का Yes, sir. बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। यस सर। क्लियर?
4 कलर वही है, ब्लैक था अभी ब्लैक ही है. If you want to also change 4 color, then again go to the program. 4 कलर चेंज करने के लिए हमने डिस्कस किया था सेट फोरग्राउंड. सपोज हम इसको दे देते हैं, मान लीजिए रेड. Hello. Control S. Again go to the command prompt, then compile, then run. I show you the output. आप देख रहे हैं टेक्स्ट कलर क्या हो गया है? Red. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं हेडिंग्स का चेंज नहीं हुआ है. क्लियर? Yes, sir. If you want to apply format to table headings, then you can also do so. उसके लिए क्या करेंगे? देखिए table heading actually is not a part of table. That's why to work with table heading, first of all we have to retrieve the table header. To retrieve table header, class is a table header. टेबल हेडिंग्स के साथ वर्क करने के लिए आपको क्लास यूज करनी पड़ेगी जे टेबल हेडर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ जे टेबल हेडर. हाउ? जे टेबल हेडर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू टेबल नेम डॉट गेट टेबल हेडर. नाउ वी विल बी हैविंग द रेफरेंस ऑफ आर जे टेबल इन टीएच. जो हमारी टेबल है जेटी, उसके हेडर में क्या था? उसके नेम, मोबाइल, जेंडर एंड एड्रेस. उनका रेफरेंस हमने किस में रिट्रीव करा लिया? टीएच में रिट्रीव करा लिया. नाउ बाय अप्लाइंग दीज फॉर्मेटिंग्स ऑन टीएच वी कैन चेंज द फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑफ हेडर. कैसे? टीएच पे हमें फॉन्ट चेंज करना है, तो हमने कहा टीएच डॉट सेट फॉन्ट F1. वी वांट टू चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ आवर हेडिंग रो. We will say th dot set background. Suppose we want heading background should be black. Suppose we want to change its foreground, its text color, headings text color. We will say th dot set White. foreground. Yes, Suppose we small. want it white. White. Clear, students? Yes, sir. Now save it. Go to the command prompt. Compile.